हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा एन इंट्रोडक्शन टू मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ओके, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में। ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ओके, इस वीडियो के एंड में आप लोग जानेंगे कि मेडिवल इंडिया क्या है, मेडिवल इंडिया का मतलब क्या है। Second, you will know about what is its importance for your UPSC preliminary and mains examination. इसका importance, इस medieval Indian history का importance क्या है आपके preliminary और mains examination के लिए, ये भी हम लोग जानेंगे। और तीसरी बात जो है वो हम लोग जानेंगे कि medieval Indian history को कैसे divide किया गया है। ओके, medieval Indian history is divided into phases. What are those phases? We'll learn about them at the end of this video. Okay. Then last but not the least, the fourth most important thing which you are going to learn is what are the topics which we are going to discuss. Okay, आखिर में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग जो ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम लोग कौन से टॉपिक्स या कौन से व्हाट यू कॉल एरियाज हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। फर्स्ट आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड। ओके, सो इंडियन हिस्ट्री को किस प्रकार डिवाइड किया गया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंडियन हिस्ट्री, historians they have divided Indian history into three phases. Okay, Indian history को three phases में divide किया गया है based on different developments, based on the characteristics and the composition. Okay, based on the composition, characteristics, socio-economic, cultural, political developments happened. On that basis they have divided Indian history into three different phases. Okay, so Indian history को three different phases में divide किया गया है। कौन से basis पे? Based on the composition, characteristics and socio-economic, political, cultural developments which happened in Indian history. Okay, so first phase is ancient India. पहला तो है ancient India, दूसरा है medieval India, तीसरा है मॉडर्न इंडिया, ओके। सो इंडियन हिस्ट्री बेस्ड ऑन डिफरेंट characteristics divided into ancient India, medieval India and modern India. Okay, so when it comes to ancient India, we started our discussion with prehistoric age. Okay, so ancient India का जो discussion हमने शुरू किया था, हमारा जो foundation course हमने शुरू किया था वो हमने शुरू किया था ancient India से. Okay, so हमने discussion शुरू किया था prehistoric age से. So from prehistoric age we'll studied till Gupta age. Okay, prehistoric age से लेके Gupta age तक हमने ancient India cover कर लिया है. Okay, so ancient India it is covered. नाउ विल डिस्कस अबाउट मेडिवल इंडिया। सो मेडिवल इंडिया का जो अगर टाइमलाइन देखेंगे आप तो इट इज टेकन अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 600 AD टिल 1707 AD। ओके, फ्रॉम 600 AD टू 1707 AD तक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन दिया गया है। ओके, और उसके बाद जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1707 टिल 1947 टिल आर इंडिपेंडेंस। ओके, this is the most accepted what do you call classification. Okay, this is the most accepted classification. There are many debates also. Okay, मैं आपको next बताऊंगी. So these classifications, these timelines, they are also debatable. ये भी मैं आपको next slide में बताऊंगी. So medieval India जो हम लोग अपने next classes से discuss करने वाले हैं उसका जो timeline है वो रहेगा 600 AD to 1707 AD तक। तो चलिए देखते हैं yes medieval Indian history को किस प्रकार divide किया गया है। Okay, so medieval India जो है, this medieval India it is again divided into two phases. See, I'll tell you about the timeline of the medieval India. So the timeline of medieval India it is taken approximately from 600 AD. Okay, approximately 600 AD से शुरू होता है medieval India और थोड़े historians का मानना है कि it ends in 1707 AD. 1707 AD में medieval India का end होता है, ये माना जाता है बहुत सारे historians के द्वारा। ओके, और थोड़े हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि इट एंड्स इन 1757. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू डेट्स? सी 1707 AD इट मार्क्स द एंड ऑफ मुगल एम्पायर. ओके, इट मार्क्स द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर कह सकते हैं, क्योंकि 1707 AD में ही हम लोग देखते हैं मुगल एम्पायर के जो भी लास्ट ग्रेट एम्पायर थे औरंगजेब,
उनकी डेथ हो गई थी 1707 AD। सो हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि दैट वाज द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और आफ्टर 1707 everything which happens, it is part of modern India. But other historians, they say that the actual modern phase of India, इंडिया का जो एक्चुअल मॉडर्न इंडियन फेज है वो शुरू होता है 1757 से। ओके, उसकी शुरुआत होती है 1757। वाई इज 1757 इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है 1757? बिकॉज 1757 में ही हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ये सब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। आप ये जब वर्ड्स सुनते हैं, मतलब औरंगजेब, बैटल ऑफ प्लासी, आप प्लीज़ मत घबराइए, हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके। मैं बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ओके, सो 1757 द बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड। ओके, एंड दैट बैटल ऑफ प्लासी, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सी, बैटल ऑफ प्लासी को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ओके, और इसे ये भी माना जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी इट डिसाइडेड हु विल रूल इंडिया, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही आप लोग देखते हैं कि इमीडिएटली अनदर बैटल हैपेंड इन द 1764। इन 1764 अनदर इंपॉर्टेंट बैटल हैपेंड, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन, उनका टेरिटोरियल इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि 1757 के पहले अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम टू इंडिया, initially they were acting as traders. They were nowhere interested in ruling India. Okay, Britishers को 1600 में ही उनको इंडिया में मोनोपोलिस्टिक ट्रेड करने का उन्हें चार्टर मिल गया था। ओके, फ्रॉम 1600 AD till 1757 or for that matter till 1764 mostly they concentrate more on the trade and commerce। वो ज़्यादातर अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। बट हम लोग देखेंगे कि 1700 ओके 1715 1760 1700 से हम लोग देखते हैं कि वो लोग शुरू करते हैं इंडिया के रीजनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंडिया के जो रीजनल पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर करना वो लोग शुरू करते हैं। दैट इज़ वाई इन 1740s and 1750s वी कैन सी द कार्नेटिक वॉर्स हैपनिंग। ओके, एंड फ्रॉम दैट कार्नेटिक वॉर्स एंड 1764 मार्क्स द एंड ऑफ द ब्रिटिश स्ट्रगल। ओके, ब्रिटिशर्स जो भी स्ट्रगल कर रहे थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, पोर्चुगीज़ की जो कंपनी थी उनसे जो उनका जो स्ट्रगल था, 1764 मार्क्स द एंड ऑफ दैट स्ट्रगल। ओके, फ्रॉम 1764 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया that was under the British East India Company। अगर आप 1764 के बाद अगर आप देखेंगे तो ओके, सो दैट इज़ वाई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो 1600 AD से 1707 AD है। और थोड़े हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी तक भी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है। लेकिन हमारे प्रिपरेशन में हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे till 1707। okay, from 1707 after the death of Aurangzeb we will start our discussion of modern Indian history। advent of Europeans के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। so medieval Indian history आप लोग प्लीज़ ये टाइमलाइन याद कर लीजिए 600 AD to 1707 AD। okay, so this medieval Indian history it is also again divided into two phases। okay, medieval Indian history को फिर से दो phases में डिवाइड किया गया है। एक रहेगा अर्ली मेडिवल इंडिया एंड मेडिवल इंडिया। सो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली मेडिवल इंडिया और दूसरा है मेडिवल इंडिया। सी दिस अर्ली मेडिवल इंडिया, इसका जो टाइमलाइन है वो रहेगा फ्रॉम 600 AD टिल 1200 AD। ओके, फ्रॉम 600 AD टिल 1200 AD। ये जो 600 ईयर्स का जो टाइमलाइन है, 600 ईयर्स का जो टाइमलाइन है उसे माना जाता है एक ट्रांजिशन फेज। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? फ्रॉम 600 AD to 1200 AD it is known as early medieval India, and this early medieval Indian phase it is considered as a transition phase between the ancient India and the medieval India। okay, ancient India और the medieval India, ancient India और medieval India के बीच में ये अर्ली मेडिवल इंडिया को एक ट्रांजिशन फेज माना गया है, क्योंकि इस ट्रांजिशन फेज में आप लोग फीचर्स एंशिएंट इंडिया के फीचर्स भी देखेंगे और मेडिवल इंडिया के फीचर्स भी देखेंगे। ओके, सो इस टाइम पीरियड को अर्ली मेडिवल इंडिया कहा जाता है और जिसका टाइमलाइन है फ्रॉम 600 AD to
1200 AD, ओके। और ये रहा मेडिवल इंडिया, एंड दिस मेडिवल इंडिया इट इज फ्रॉम 1200 AD टिल 1707, ओके, टिल 1707, ओके। सो ये रहा द क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, ओके। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिवल इंडिया का मतलब क्या है? सी मेडिवल इज नथिंग बट मिडिल, ओके। मेडिवल इंडिया इट इज अ मिडिल एज बिटवीन एंशिएंट एज एंड मॉडर्न एज, ओके। मेडिवल का मतलब क्या होता है? मिडिल। सो मेडिवल इंडिया क्या है और मेडिवल इंडियन एज क्या है? इट इज एन मिडिल एज बिटवीन एंशिएंट एज एंड मॉडर्न एज। एंशिएंट एज और मॉडर्न एज के बीच में जो मिडिल एज है उसे मेडिवल कहते हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि मेडिवल इंडिया क्या है। सेकेंड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन? अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स सिलेबस और मेंस सिलेबस, जो भी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेडिवल इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज़ पेपर और मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में मेडिवल इंडिया का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, ओके। तो पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा प्रिपेयर भी करते हैं कि वो पहले तो एंशिएंट इंडिया ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं और आर्ट एंड कल्चर पढ़ के चले जाते हैं। यही उनका स्ट्रैटेजी रहता है प्रीलिम्स के रिलेटेड और मेंस के रिलेटेड भी, ओके। बट you have to understand that reading medieval India is important because recently if you take the method followed by UPSC examination, यूपीएससी एग्जामिनेशन का अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेडिवल इंडिया से भी क्वेश्चंस आते हैं और यूजुअली जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मेडिवल इंडिया भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। सेकेंड, मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में, उधर आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल दिया है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दिया गया है। तो आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से समझने के लिए, ओके, टू अंडरस्टैंड आर्ट एंड कल्चर यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ मेडिवल इंडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, डांस, रिलीजियस मूवमेंट्स और इसी प्रकार के बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम लोग मेडिवल इंडिया में देखते हैं। तो अगर आपको मेडिवल इंडिया का नॉलेज नहीं है तो यू कांट हैव गुड नॉलेज अबाउट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को आपको अच्छे से समझने के लिए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप समझिए, जब भी आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो आप ये समझते हैं कि इट वॉज टाइम पीरियड व्हेन मोस्ट ऑफ द इन्वेशंस हैपन। इसमें खाली इन्वेशंस के बारे में पढ़ना है, बैटल्स के बारे में पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस टाइम पीरियड में ही इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ओनली यू हैव टू learn about the political transitions happen, okay, kind of political transitions happen and cultural transitions, religious transformations, economic developments, revenue systems, administrative systems, जो भी मॉडर्न इंडिया का जो बेस है वो डेवलप हुआ था मेडिवल इंडिया में। सो दैट इज़ वाई नॉलेज अबाउट मेडिवल इंडिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। सो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग मेडिवल इंडिया में, चलिए ये देखते हैं। सो मेडिवल इंडिया में, अर्ली मेडिवल इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे, सो इन अर्ली मेडिवल इंडिया EMI लिखते हैं, ओके। सो इन अर्ली मेडिवल इंडिया फर्स्ट विल स्टडी अबाउट हर्षवर्धना। हमने हर्षवर्धना का डिस्कशन खत्म कर लिया है ऑलरेडी, सो वो भी हम लोग पढ़ने हैं, ओके। अर्ली मेडिवल इंडिया में हर्षवर्धना और पुष्यभूति डायनेस्टी, वी हैव फिनिश्ड दिस, ओके। सो आफ्टर हर्षवर्धना वी हैव टू डिस्कस अबाउट गुरुजारा प्रतिहारास, गुरुजारा प्रतिहारास, पालास, गुरुजारा प्रतिहारास। Then we'll discuss about राष्ट्रकूटास और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चोलास या इंपीरियल चोलास भी कहते हैं इन्हें, और पल्लवास, ओके। और एंड में हम लोग पढ़ेंगे अर्ली भक्ति मूवमेंट, अर्ली भक्ति मूवमेंट, ओके। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सो इन अर्ली मेडिवल इंडिया दैट इज फ्रॉम 600 AD टिल 1200 AD वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हर्षवर्धना, गुरुजारा प्रतिहारास एंड पालास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास, चोलास, पल्लवास और अर्ली भक्ति मूवमेंट के बारे में, ओके। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया के बारे में, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू मेडिवल इंडिया, सो इस मेडिवल इंडिया में हम लोग शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत से, ओके, दिल्ली सुल्तान्स। और इन दिल्ली सुल्तान्स में हम लोग पढ़ेंगे द स्लेव डायनेस्टी,
द खिलजीज, द तुगलक्स एंड द लोधी डायनास्टीज। और उसके बाद आफ्टर दिल्ली सुल्तान्स विल स्टडी अबाउट विजयनगरा एम्पायर, विजयनगरा एम्पायर। और विजयनगरा एम्पायर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहामनी सुल्तान्स, then after that we'll study about rise of Mughal empire, rise and decline of Mughal empire, then at the end we'll discuss about the Sufi and Bhakti movement, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, डिड यू गेट दिस? सो मेडिवल इंडिया में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिल्ली सुल्तान्स। ओके, जो टाइम पीरियड जो मेडिवल इंडिया के वो रहेगा 1200 AD टिल 1707 AD। और इसमें सॉरी मैं एक भूल गई, विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस फ्रॉम पोर्चुगीज टू डच द to East India Company till French East India Company. Okay, so medieval India we are going to discuss about Delhi Sultans. We will start our discussion with Delhi Sultans. In Delhi Sultans we will study about the slave dynasty. हम लोग slave dynasty के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद खिलजी dynasty, the Tughlaqs and the Lodi dynasty। और उसके बाद हम लोग विजयनगरा एम्पायर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग विजयनगरा एम्पायर के बारे में देखेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द बहामनी सुल्तान्स, द साउथ इंडियन के जो भी सुल्तान्स हैं वो देखेंगे हम लोग। और उसके बाद राइज ऑफ मुगल एम्पायर, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वो भी देखेंगे एंड देन विल स्टडी अबाउट द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स चल रहे थे इस टाइम पीरियड में वो भी हम लोग देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस सीरीज विल स्टडी अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, मेडिवल इंडिया के एंड में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में देखेंगे। ओके, डिड यू गेट दिस? तो इसके बाद से मेडिवल इंडिया का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको एंशिएंट इंडिया के डिस्कशन के बारे में भी बता दूंगी। हमने एंशिएंट इंडिया के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक टॉपिक बचा हुआ है वो है संगम एज रिलेटेड। ओके, साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है वो हम लोगों को डिस्कस करना है, संगम एज वो एक हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडिया के रिलेटेड। दूसरी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहती हूँ कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, एंशिएंट इंडिया रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स और मेंस, इसका डिस्कशन करना भी हम लोग शुरू करेंगे। जब हमारा ये मेडिवल इंडिया पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स चलते रहेंगे तब हम लोग एंशिएंट इंडिया के रिलेटेड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो प्लीज़ आप लोग जाके अच्छे से रिवाइज कीजिए आपके एंशिएंट इंडिया के जो भी लेक्चर्स हैं। पहले तो लेक्चर देखिए, उसके रिलेटेड जो भी मैंने आपको रेफरेंस बुक्स दिए हैं, मतलब रेफरेंस बुक्स मैंने बताए ना आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है, थोड़े रेफरेंस बुक्स मैंने जो आपको बताए हैं जाइए वो सब पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, 2 से 3 बार लेक्चर्स देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और तब जाके आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर हम लोग लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड, वो उसका अच्छे से आप लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, सो दिस वॉज इट गाइस। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया मेडिवल इंडिया क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, और मेडिवल इंडिया का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम लोगों ने देखा, और उस क्लासिफिकेशन में भी यूपीएससी के लिए कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, ये भी हमने देख लिया है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, ये इस वीडियो का एंड है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग संगम एज डिस्कस करेंगे। ओके, वी डिस्कस अबाउट संगम एज एंड दैट विल मार्क द एंड ऑफ आवर एंशिएंट इंडियन लेक्चर सीरीज। ओके, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स हमने शुरू किया था, हमने एंशिएंट इंडिया से शुरू किया था, हम लोग अब एंशिएंट इंडिया खत्म कर देंगे जब हम लोग संगम एज डिस्कस करेंगे। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग संगम एज दैट विल बी द एंड ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया। अब तब हम लोग उसके बाद हम लोग मेडिवल इंडिया का डिस्कशन शुरू करेंगे। ओके, सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल and if you find this video helpful, please like, share and subscribe to our channel Pacific IAS and press the bell icon so that you never miss our UPSC foundation course. Okay, thank you for watching. Keep learning, stay consistent, and I'll see you in the next video. Bye bye.